Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and I am your Abhishek sir. So once again I am back with a new chapter with a new poem, that is The Eagle and the Beetle, written by Bikram Seth. I have taken up this poem from class 8 English literature book. Okay, this poem is very lengthy, so we are going to make two videos on this chapter. A single video would be a bit lengthy and it would be a bit difficult to understand because the poem is very intricate. Many things are there, many points are there which we are going to discuss in this particular video. तो आप लोगों को लिखना है, हर एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है. बुक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए और कॉपी भी ले लीजिए, ठीक है. हर एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है. और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पोएम वी आर गोइंग टू डू द थीम्स, even we are going to do the literary device and the critical appreciation, जो कि बहुत और बहुत ही important होने वाला है स्पेशली इस पोएम के लिए. ओके, दो पार्ट में हम लोग ये पोएम करेंगे. आज 60 और 70% हम लोग करेंगे, बाकी जो पोएम है आधा, ओके, यानी कि 40 और 30% जो पोएम है along with the themes, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड पोएटिक डिवाइस, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, ठीक है. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट द मेन थीम्स फ्रेंडशिप, रिवेंज एंड डिटर्मिनेशन. देखिए, और भी थीम्स है लेकिन मेन है ये थीम जो हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है. देखिए, अ बीटल लव्ड अ सर्टेन हेयर एंड वॉन्डर्ड विथ हिम एवरीवेयर. सो वी आर गेटिंग टू कैरेक्टर्स, वन बीटल एंड वन हेयर. हेयर मीन्स वी नो रैबिट. ओके, so a beetle was there and a hare was there and both of them loved each other a lot. There was a pure love between them. It conveys a sense of love. Okay, and wandered with him everywhere. So both of them loved each other so much that they always wandered together. They went to fairs and feasts together, took walks in any kinds of weather. So not only they wandered together, rather they used to go to the fairs together, they used to feast together, and they used to take walks together. Doesn't matter what kind of weather it was, whether it was sunny, whether it was cloudy, whether it was raining, nothing prevented both of them from being together. टॉक्ड ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में वो लोग बात करता था. पास्ट, पास्ट के बारे में वो लोग बात करता था. ऑन सनी डेज और ओवरकास्ट. सनी डेज मीन्स हैप्पी डेज, ओके, एंड ओवरकास्ट मीन्स sad days. So they used to talk about future, they used to talk about past also. Doesn't matter whether it was sunny day or overcast. बट सिंस देयर फ्रेंडशिप वॉज सो प्लेजेंट, बट उन लोगों का फ्रेंडशिप इतना अच्छा था कि बोथ ऑफ देम लिव्ड फॉर द मोस्ट पार्ट इन द प्रेजेंट, कि वो लोग मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में जीता थे. यानी कि द वेरी फर्स्ट टाइम्स दैट टेल्स अस दैट टू creatures are there, one beetle and one hare, and both of them loved each other so much that they used to wander everywhere together. They used to go to fairs together, they used to feast together, even they used to take walks, long walks they used to take together, whatever or however the weather was. Okay, they used to talk about future, they used to talk about past also. Doesn't matter for them if it is a happy day or sad day. एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि वो दोनों फ्यूचर के बारे में भी बात करता था, पास्ट के बारे में भी बात करता था, लेकिन वो दोनों हमेशा प्रेजेंट में जीता था. ओके, यानी कि बोथ ऑफ देम वैल्यूड ईच अदर, बोथ ऑफ देम वैल्यूड ईच अदर्स प्रेजेंस, कि आज मैं हूँ कल मैं नहीं भी रह सकता हूँ, आज मेरा दोस्त है कल वो नहीं भी रह सकता है. तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अभी जो पल हम लोग जी रहे हैं, एक साथ जो पल हम लोग बिता रहे, अभी हम लोग इस पल को एंजॉय करें. इट हैपन्स विथ अस ऑल्सो. सपोज समथिंग बैड has happened with us, we just keep thinking about the thing in spite of knowing that we cannot change it. Okay, we cannot change it, still we keep thinking about that particular incident कि मेरे साथ वो
क्यों हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता था. वाई मी, वाई मी, वाई मी. दिस इज हाउ वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द बैड थिंग्स that has happened with us. But we should not do it. We should live in the present. We should keep it in our mind that God has sent us for some purpose. हम लोगों को भगवान ने इस धरती पे भेजा है कुछ पर्पस के लिए. तो हम लोगों को ये हम लोग के लिए ये अनुचित होगा कि हम लोग किसी और चिंता में जो हम लोग के साथ हो गया है उसको लेके हम लोग सोचे और वक्त ज़ाया करें. वी शुड नॉट डू दिस. ओके, तो यहाँ पे बिटल और हियर जो था, रैबिट जो था, वो दोनों सेम काम करता था. सेम चीज़ कि वो दोनों फ्यूचर के बारे में भी बात करता था, वो लोग पास्ट के बारे में भी बात करता था, लेकिन बोथ ऑफ देम यूज टू लिव इन देयर प्रेजेंट टाइम. कि एक साथ हम लोग अभी है तो हम लोग अभी इस पल को एंजॉय करेंगे, हम लोग अभी इस सिचुएशन को एंजॉय करेंगे. क्लियर? सो आई हैव द फर्स्ट स्टैंजा is clear. The first stanza gives us a sense of friendship, togetherness के जगह आप लोग लिख सकते हो oneness. ओके, satisfaction. Okay, the first stanza. Okay, now the second one. One day, alas conveys a sense of misfortune. One day, change of tone. तो पहला जो स्टैंजा है देखो, पहला स्टेंजा एकदम हैप्पी स्टेंजा है कि दो क्रिएचर था, वो दोनों एक साथ रहता था हमेशा, इधर उधर घूमता था, एंजॉय करता था. वन डे, लेकिन एक दिन, alas, a sense of misfortune, an eagle flew above them, and before they knew what what cloud had shadowed them, the hare hung from her talon in mid-air. Talon means nails. Okay, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बीटल और वो हेयर एक साथ चल रहा था, ठीक है, और उनके ऊपर क्या आ गया, एक ईगल आ गया. अब मैंने बस इसी तरह दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ. ये है ईगल, ये है बीटल, ये है हेयर. ओके, अब देखो बीटल का साइज़ भी छोटा है और हेयर का साइज़ भी छोटा है. उन लोगों के ऊपर ईगल है तो पूरा एकदम शैडो हो गया ये वाला पार्ट. ओके, तो एक दिन वो दोनों जा रहा था और अचानक उन दोनों ने ख्याल किया कि उनके ऊपर एक शैडो है. तो पहले उन लोगों को लगा कि वो कुछ क्लाउड वगैरह होगा, लेकिन वो क्लाउड नहीं था. वो क्या था, वो एक्चुअली ईगल था. और ये समझते समझते उस बीटल ने देखा कि ईगल ने क्या किया, इस हेयर को अपने टैलॉन पे ले लिया, यानी कि अपना जो नाखून है, ओके, नोकीले जो नाखून, उस नाखून में लेके मिड ईयर पे चला गया. दैट मीन्स द ईगल has taken the hare or the rabbit. Please spare my friend, please आप मेरे दोस्त को छोड़ दो. The beetle cried. It's a sense of helplessness. It's a sense of helplessness. Okay, the beetle could not do anything, but it loved its friend a lot, so it just shouted, please spare my friend, कि please आप मेरे दोस्त को छोड़ दो, आप मेरे दोस्त को छोड़ दो. But the great eagle conveys a sense of pride. But the great eagle sneered with pride, कि अपने प्राइड में, अहंकार में उस ईगल ने आंसर दिया, यू पनी सर्वाइल क्लॉडिस बग. पनी मीन्स छोटा, स्मॉल. ओके, सर्वाइल मीन्स स्लेव एंड क्लॉडिश मीन्स फुलिश. तो देखो यहां पे ईगल ने क्या क्या एडजेक्टिव यूज किया है उस बीटल के लिए, पनी, सर्वाइल एंड क्लॉडिस बग. तुम एक छोटा सा एक क्रिएचर हो, एक छोटा सा तुम स्लेव हो, एक छोटा सा तुम फुलिश एक बग हो. गो ऑफ, चले जाओ यहाँ से. एंड हाइड योर अगली मग मीन्स फेस, और जाके तुम अपना ये छोटा सा गंदा सा फेस छुपा दो. हाउ डू यू डियर एज्यूम द राइट टू मेडल अप विथ माई एपेटाइट. यहाँ पे एपेटाइट मतलब रैबिट, यहाँ पे रैबिट.
अब वो ईगल रैबिट को खाने वाला है, इसलिए ईगल ने कहा कि ये मेरा एपेटाइट है, यानी कि ये वाला जो रैबिट है ये मेरा एपेटाइट है। हाउ डू यू डियर एज्यूम द राइट, तुम्हें ये क्यों लगा या फिर तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा राइट है कि तुम मेडल अप करो, यानी कि तुम इंटरफेयर करो मेरे खाने में। समझ में आया? तो यहाँ पे जब ईगल जब उस रैबिट को लेके चला गया तो वो बीटल छोटा सा एक क्रिएचर, एक छोटा सा एक इंसेक्ट है। इट कुड नॉट डू एनीथिंग, रेदर इट क्राइड प्लीज लीव माई फ्रेंड, प्लीज स्पेयर माई फ्रेंड। अब ये सुन के ईगल एकदम गुस्सा गया कि यू पनी सर्वाइल क्लॉडिस बक, तुम एक छोटा सा स्लेव हो, एक फुलिश हो, गो ऑफ, चले जाओ यहाँ से और जाके अपना फेस छुपा लो। हाउ डू यू डेयर, कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि तुम्हें यह लगा कि तुम्हें हक है या फिर तुम्हें अधिकार है कि तुम मेरा जो स्नैक है या फिर मेरा जो एपेटाइट है, मेरा जो खाना है, तुम उसमें इंटरफेयर करोगे। Clear? So we are seeing that the eagle, see the word great eagle. So eagle के लिए यहाँ पे पोएट ने जो एडजेक्टिव यूज किया वो ग्रेट। तो ईगल में एक ग्रेटनेस है, ईगल में एक प्राइड है, इसीलिए देखो ईगल क्या कर रहा है यहाँ पे, उस छोटा सा जो इंसेक्ट है, जो बीटल है, उसे इंसल्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है? वो पनी है, वो सर्वाइल है, वो क्लॉडिश है, उसका अगली मग है, फेस उनका गंदा है, ठीक है, और उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो बीटल और उनका जो खाना है रैबिट उसके बीच में इंटरफेयर करेंगे। दिस हियर इज माई स्नैक, दैट मीन्स दिस इज माई फूड। किसने कहा? ये ईगल ने कहा। किसको कहा? बीटल को कहा। दिस हियर इज माई स्नैक, हैव यू नॉट हर्ड, आई एम द ग्रेट गॉड ज़्यूस बर्ड। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ग्रेट गॉड ज़्यूस का बर्ड हूं मैं? तो यहां पे जो अहंकार है ईगल में, अहंकार किस लिए है? क्योंकि वो ज्यूस का बर्ड है। ओके, इसीलिए यहां पे ईगल जो है वो बहुत प्राउडी है कि ये जो हियर है, ये जो रैबिट है, ये मेरा खाना है, ठीक है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि तुम मेरे और मेरे खाने के बीच आओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ग्रेट गॉड ज्यूस का बर्ड हूं? नथिंग कैन हार्म मी, लीस्ट ऑफ ऑल अ स्लो पैथेटिक ड्रोनिंग बॉल, और मुझे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। नथिंग कैन हार्म मी, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट। Okay, that means here the eagle is overconfident. Nothing can harm me. मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम तो एक छोटा सा इंसेक्ट हो, तुम तो एक पनी सर्वाइल क्लॉडिस मग हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? अ स्लो पैथेटिक ड्रॉनिंग बॉल, फिर से देखो एडजेक्टिव यूज किया, स्लो पैथेटिक ड्रॉनिंग बॉल, तुम छोटा सा एक मतलब स्पिक की तरह हो, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं गॉड ज्यूस का बर्ड हूं, और तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हियर कीप योर फ्रेंड्स हेड लो, तुम अपना जो फ्रेंड है इसका सर लो। एंड शी टोर द हेयर्स हेड ऑफ एंड स्विफ्टली बोर हिज ब्लीडिंग टॉर्सो टू हर नेस्ट, रिप्ड ऑफ हिज टेल एंड एट द रेस्ट। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए, ये लो, तुम अपने दोस्त का सर लो। तो उन्होंने क्या किया? उस ईगल ने उस हेयर का जो सर है उसे काट दिया, काट के उसे जमीन पे फेंक दिया, ठीक है, देखो। एंड शी टोर, यानी कि ईगल यहाँ पे फीमेल ईगल है, ओके। एंड शी टोर द हेयर्स हेड ऑफ, और उन्होंने क्या किया? ईगल ने उस हेयर का जो सर है उसे टीयर कर दिया और उसे जमीन पे फेंक दिया। एंड स्विफ्टली बोर, और स्विफ्टली मीन्स वेरी फास्ट, ओके, उसे लेके चला गया कहाँ पे? वो ब्लीडिंग टॉर्सो, टॉर्सो मतलब अपना शरीर से, ओके, धड़ से सर को अलग कर दिया, तो जो धड़ का जो पोर्शन रह गया बॉडी का उसे कहा जाता है टॉर्सो, ओके। ब्लीडिंग, क्यों ब्लीडिंग? क्योंकि उनका जो बॉडी है, हेयर का जो बॉडी है वहाँ से सर को काट दिया है, तो वहां से ब्लीडिंग हो रहा था, ओके। एंड स्विफ्टली बोर हिज ब्लीडिंग टॉर्सो टू हर नेस्ट, वो सीधा उस बॉडी को लेके, हेयर का जो ब्लीडिंग बॉडी है वो लेके कहाँ पे चला गया? अपने नेस्ट पर चला गया। रिप्ड ऑफ हिज टेल, उस हेयर का जो टेल था उसे फेंक दिया। एंड एट द रेस्ट, और बाकी जो पार्ट है उसे खा लिया। क्लियर? सो दैट दिस स्टैंजा कन्वेज अ सेंस ऑफ क्रुएल्टी, okay, conveys a sense of pride, okay, conveys a sense of overconfidence,
ओवर कॉन्फिडेंस। क्लियर? सो आई होप फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है आपका, सेकंड स्टैंजा भी क्लियर है और थर्ड स्टैंजा भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखो। द बीटल स्टीयर्ड एट हर फ्रेंड्स हेड। तो बीटल नीचे है जमीन पे, ओके, और जमीन पे क्या हुआ, उसका जो फ्रेंड है, जो रैबिट है, उसका सर कटा पड़ा हुआ है। द बीटल स्टीयर्ड एट हर फ्रेंड्स हेड, एकदम मतलब स्टीयर किया हुआ है उस बीटल ने, कहाँ, अपना जो फ्रेंड है हियर, उसके सर के तरफ। इट कन्वेज अ सेंस ऑफ सैडनेस, ओके, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, कि वो अपने मन ही मन में कुछ सोच रहा है, एकदम मतलब विदाउट ब्लिंकिंग आइज वो देख रहा है उस सर की तरफ। एंड विश्ड दैट शी हर सेल्फ वॉज डेड, और वो सर देख के वो ये सोच रहा है कि काश मैं मर जाता और मेरा दोस्त को कुछ नहीं होता, काश अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। तो देखो यहाँ पे इट कन्वेज अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्सो, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, दैट द बीटल is ready to sacrifice itself for the sake of the hair. She mixed her tears with dark blood. Dark blood क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम हो गया है उस ईगल ने बीटल को, सॉरी, उस ईगल ने हेयर को उठा लिया है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा था, उसके बाद गला काट दिया, तब वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके बाद भी बात कर रहा था, वहाँ पे कुछ टाइम गया, फिर वो ईगल लेकर चला गया। उसके बाद बीटल स्टीयर किया हुआ था उस अपने फ्रेंड के कटा हुआ जो सर है वहाँ पे, तो एक टाइम गैप यहाँ पे हो गया। यहाँ तक क्या हुआ, वो ब्लड जो ज़मीन पे गिरा था वो डार्क हो गया है, ठीक हो गया है। ओके, शी मिक्स्ड हर टीयर्स विथ हिज डार्क ब्लड एंड क्लोक्ड हिज फेस विथ क्लॉड्स ऑफ मड, अ सेंस ऑफ फॉर्मनेस, सेंस ऑफ फॉर्मनेस। वो रोने लगा, वो बीटल जो है वहाँ पे रोने लगा, और उसका जो आंसू गिर रहा था वो ज़मीन पे उस हेयर का जो ब्लड गिरा हुआ था उस ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया उनका आंसू। एंड क्लोक्ड हिज फेस, क्लोक्ड मीन्स कवर्ड, क्लोक्ड मीन्स कवर्ड, ओके, और अपना फेस उन्होंने कवर कर दिया किससे, क्लॉड्स ऑफ मड से। शी शोर दैट टिल हर डाइंग ब्रेथ शी वुड एवेंज हिज क्रूअल डेथ। फिर उन्होंने अपने मन ही मन में ओथ लिया, एकदम शोर किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपनी लास्ट एकदम अंतिम सांस तक मैं ये जो क्रूएल डेथ है, किसका डेथ है, उनका दोस्त हेयर, उनका डेथ है, किसने मार डाला, ईगल ने मार डाला, कि जब तक मेरा सांस चलेगा, या फिर अपना मतलब मेरा लास्ट जो अंतिम जो सांस चलेगा तब तक मैं इस डेथ का बदला लेता रहूंगा। दैट शी वुड मेक द ईगल पे फॉर व्हाट शी हैड परफॉर्म टुडे, कि वो ईगल जो आज किया है, जो पाप उन्होंने आज किया है, मुझसे मेरे दोस्त को छीन लिया है, मेरे ही सामने मेरे दोस्त को मार डाला है उन्होंने, मैं इसका बदला लेके रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा सांस जब तक चलेगा मैं उससे बदला लेता रहूँगा। वंस अगेन इट कन्वेज अ सेंस ऑफ फॉर्मनेस, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ फॉर्म डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे जाके क्या हुआ, उस बीटल ने अपने ही मन में प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इसका जो रिवेंज है वो लेता रहूंगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट आंसर देखो। आई होप यहां तक पूरा क्लियर है। फर्स्ट स्टैंजा हो गया, सेकंड स्टैंजा हो गया, थर्ड स्टैंजा हो गया, फोर्थ स्टैंजा भी हो गया, ठीक है। चलो देखो, ओके। Next day, she slowly tracked the trail from drop of blood to tuft of tail. When the eagle was taking the bleeding body of the rabbit, at that time the drop of blood was falling on the ground. And next day, the beetle followed the drop of blood only. ओके, वो ड्रॉप ऑफ ब्लड, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे ब्लड, ऐसा ऐसा पूरा ब्लड गिरता गिरता गया। तो अब वो जो बीटल है, वो बीटल भी एकदम फॉलो करते गया, फॉलो करते 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 एकदम पहुँच गया। तो ब्लड को फॉलो किया, और किसे फॉलो किया, देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है
कि रिप्ड ऑफ हिज टेल, वो खाने से पहले ईगल ने क्या किया था, उस हेयर का जो टेल है उसे फेंक काट दिया था, ओके, उसे काट के फेंक दिया था। तो क्या क्या फॉलो किया यहाँ पे बीटल ने ड्रॉप ऑफ ब्लड को फॉलो किया और टफ्ट ऑफ टेल को फॉलो किया। फॉलो करते करते वो कहाँ पहुँच गया, वो एकदम पहुँच गया उस ईगल का जो नेस्ट है वहाँ पे। Till high up on the mountain crest, she found the huge unguarded nest. Crest मतलब top. So finally, drop of blood and tuft of tail को ट्रेस करते करते, फॉलो करते करते एकदम पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। कौन? वो बीटल पहुंच गया। पहुंच के उन्होंने ढूंढ लिया कि वहाँ पे एक ह्यूज, एक बड़ा सा नेस्ट था, लेकिन वो अनगार्डेड था। कि हम लोग जब घर में रहते हैं, हम लोग दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। रात को हम लोग सोते हैं, हम लोग दरवाज़ा, मेन गेट बंद करके सोते हैं। ऐसा नहीं कि खुले छोड़ देते हैं हम लोग, राइट? बट हियर द ईगल्स नेस्ट वॉज नॉट गार्डेड, दो the eagle is a great bird and the eagle is overconfident कि मैं the great god Zeus का बर्ड हूँ, तो कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ईगल ने क्या किया, ईगल अपना नेस्ट को अनगार्डेड छोड़ दिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ड्रॉप ऑफ ब्लड और टफ्ट ऑफ टेल को फॉलो करते करते माउंटेन के टॉप तक पहुँच गया। कौन? वो बीटल पहुँच के वहाँ पे उस ईगल का जो अनगार्डेड नेस्ट है उसे ढूंढ लिया। एंड एट द आवर दैट यस्टरडे द बर्ड हैड प्लंज्ड टुवर्ड्स हर प्रे, और बस एकदम उसी टाइम पे देखो यहां पे सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, एंड डिटर्मिनेशन के आगे आप लोग ऐड कर दो बुलडॉग डिटर्मिनेशन और बर्निंग डिटर्मिनेशन, एन होगा, ठीक है। और एंड एट द आवर दैट यस्टरडे द बर्ड हैड प्लंज्ड टुवर्ड्स हर प्रे, द बीटल विथ हर 6 शॉर्ट लेग्स रोल्ड आउट द माइटी ईगल्स एग्स। तो क्या हुआ, मान लो कि ये पूरा पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे उस ईगल का क्या था, नेस्ट था, और नेस्ट में क्या था, अंडा था। ओके, नेस्ट में क्या था, अंडा था ईगल का। तो बीटल जो है, बीटल धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंच के उन्होंने देखा कि ईगल का जो नेस्ट है वो नेस्ट था अनगार्डेड, और उसमें उस ईगल का क्या था, अंडा जो था वहाँ पे था, ठीक है। तो और फिर वहाँ पे जाकर बीटल ने वेट किया कुछ देर, और बस उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब ईगल ने मारा था इस बीटल के दोस्त को, यानी कि उस हेयर को, उसी टाइम ने एकदम डॉट उसी टाइम में इस बीटल ने क्या किया, अपना छोटा 6 लेग को यूज करके ये जो अंडा है, अंडे को नीचे फेंक दिया। यानी कि ईगल का जो बच्चा है उसका सर्वनाश कर दिया, वो मतलब मार दिया उस ईगल का जो बच्चा है उसे। क्लियर? देखो यही लिखा हुआ है। एंड एट द आवर दैट यस्टरडे द बर्ड हैड प्लंज्ड टुवर्ड्स हर प्रे, दैट मीन्स एट द सेम टाइम व्हेन द ईगल एक्चुअली प्लंज्ड ऑन द रैबिट द लास्ट डे, at the very same time the beetle with her 6 short legs, at the very same time the beetle used her 6 short legs रोल्ड आउट द माइटी ईगल्स एग्स, और माइटी ईगल का जो एग्स था उसे मतलब एग्स को नीचे फेंक दिया पहाड़ से। ओके, द ईगल स्क्रीम्स ऑफ शी लिफ्ट एट वंस, फेंक के देन एंड देयर वो रिटर्न कर गया वहाँ से। शी लिफ्ट एट वंस बट शी कुड हियर द ईगल स्क्रीम्स ऑफ पेन एंड फियर व्हेन लेटर शी रिटर्न्ड एंड फाउंड द ब्रोकन एगशेल्स ऑन द ग्राउंड। तो अब वहाँ पे जब गया था तब वहाँ पे ईगल नहीं था, ठीक है। तो बीटल वहाँ पे गया, जाके अपना काम करके वो नीचे आ गया। तो वो धीरे धीरे आ रहा है ना, बीटल छोटा पैर है उनका, तो नीचे आ गया। लेकिन तब तक क्या हुआ था, ऑलरेडी ईगल अपने नेस्ट पर रिटर्न आ चुका था। एंड ऑन रिटर्निंग टू द नेस्ट शी फाउंड द ब्रोकन एग शेल्स ऑन द ग्राउंड, एंड आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ ग्रीफ द ईगल वॉज स्क्रीमिंग। ईगल
चिल्ला रहा था, ठीक है। और बीटल जो है, बीटल के कान में उस ईगल का आवाज आ रहा था। देखो, शी लिफ्ट एट वंस बट शी कुड हियर, सो व्हेन शी केम डाउन शी कुड हियर द ईगल स्क्रीम्स ऑफ पेन एंड फियर। द ईगल वॉज on seeing the broken eggshells, the eagle was filled with pain and fear, and when later she returned and found the broken eggshells on the ground. So return आके उन्होंने जब देखा कि उनका eggshell जो है वो नीचे गिरा हुआ है, वो देख के आउट ऑफ पेन, आउट ऑफ फियर वो चिल्लाने लगी, ठीक है। और वो बीटल के कान में सब कुछ आ रहा था। क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर स्टैंजा कन्वेज अ सेंस ऑफ, यहाँ पे हेल्पलेसनेस, क्योंकि ईगल यहाँ पे एकदम हेल्पलेस है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट डे द ईगल मूव्ड हर नेस्ट 10 miles और मोर टुवर्ड्स द वेस्ट। अब ईगल को ये समझ में आ गया कि शी कुड नॉट कीप हर अनगार्डेड नेस्ट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई शी वॉज विलिंग टू मूव हर नेस्ट वेयर 10 miles or more towards the west. Okay, towards the west. So actually she thought that if she would move her nest, the beetle or whoever is it would not be able to find her nest. But still the beetle's scrutiny, that means examination, बेहतर होगा एग्जामिनेशन नहीं बोल के आप लोग लिखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, watchfulness. Okay, but still the beetle's scrutiny followed her flight from rock to tree. So next day, the eagle thought that she would move her nest 10 miles or more towards the west, so that the beetle would not be able to find her nest. But the beetle was very determined. I repeat, the beetle was very determined, the beetle was very firm, the beetle was very brave. Okay, she wanted to take the revenge of her friend's death. That's why she started following the eagle. Okay, and she followed the eagle followed the flight of the eagle from rock to tree. When finally the eagle laid another clutch. Clutch means clutch of eggs. Clutch of eggs. When finally the eagle laid another clutch, the beetle made straight for the nest which they lay, and when the bird was hunting prey with much fatigue but little sound, rolled the great eggs onto the ground. Oh, awesome explanation. देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि नेक्स्ट डे ईगल को लगा कि शी वुड मूव हर नेस्ट, क्लियर, 10 miles or more towards the west, so that the beetle would not be able to find her nest. But the beetle was so determined, she was like so firm to take revenge, that she started following the flight of the eagle from rock to tree. And this time also the beetle came to know where the eagle actually moved her nest. So once again there, that means in the second nest, in the next place, when the eagle laid another clutch of eggs, once again the beetle went there. फिर से वो beetle वहाँ पे चला गया. Okay, and she reached the nest in which they lay. they मतलब यहाँ पे क्या, they मतलब eggs. ओके, फिर से बिटल नेस्ट में पहुंच गया जहां पे उस ईगल का एग्स रखा हुआ था. एंड व्हेन द बर्ड वाज हंटिंग प्रे, एंड वंस अगेन व्हेन द बर्ड वाज नॉट इन हर नेस्ट विथ मच फैटिग मीन्स टायर्डनेस. व्हाई? क्योंकि देखो 10 माइल या फिर उससे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा अभी इस बिटल को. सो विथ मच फैटिग बट लिटिल साउंड कन्वेज अ सेंस ऑफ केयरफुलनेस. Conveys a sense of carefulness. That means with much tiredness but with carefulness, the beetle rolled her great eggs onto the ground. So second time फिर से उस बीटल ने क्या किया, उस माइटी ईगल का जो ग्रेट एग्स था सारा एग्स को जमीन पे फेंक दिया.
ओके तो फर्स्ट टाइम देखो एकदम सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों ने मतलब ये पढ़ा था कि वो जो बीटल है, ओके, शी प्रॉमिस्ड हर सेल्फ कि शी वुड टेक रिवेंज, that she would take revenge of the death of her friend, right? That's why for the first time she destroyed all the eggs of the eagle. The eagle thought to move her nest. Even the eagle did so. The beetle followed her. Once again, for the second time, the beetle destroyed the eggs of the beetle. Once again the beetle destroyed the eggs of the eagle. Clear? तो फर्स्ट टाइम भी डिस्ट्रॉय किया, सेकेंड टाइम भी डिस्ट्रॉय किया. When this had gone on for a year, इसी तरह एक साल चलता रहा. एक साल, जस्ट इमेजिन कि हर एक बार ईगल जो है वो लाइक एग्स ले कर रहा है और बीटल जो है उसे डिस्ट्रॉय कर रही है. ठीक है. When this had gone on for a year, the eagle, crazed with rage and fear, out of control, ईगल यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. वुड टर्न बैक स्क्रीचिंग इन मिड एयर वेन एवर शी वुड साइड अ हियर. तो ऐसा एक साल तक चलता रहा, एक साल तक. अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ईगल. अब ईगल के मन में एक संदेह हो गया है, एक डाउट हो गया है कि क्या होगा. जब भी मैं एग्स ले कर रहा हूं तब भी वो बीटल आ रही है, बीटल आके मेरे सारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है. उसे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट शी शुड डू, वो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है. तो मानो कि एक बीटल का साइड, मान लो कि वो ईगल जो है शी इज फ्लाइंग राइट नाउ इन द स्काई, ओके, और अगर जमीन पे एक भी बीटल देखा, एक भी बीटल, ओके, तो क्या हुआ, वो ईगल जो है वो स्क्रीच करना शुरू कर रही थी मिड एयर पे. मान लो कि उनके मन में एक डर सा बैठ गया था, किसके लिए, एक छोटा सा बीटल के लिए. तो देखो यहां पे ईगल के लिए वर्ड यूज हो रहा है ग्रेट, माइटी, राइट. बट ग्रेट माइटी ईगल डर रही है एक छोटा सा, एक क्लॉडिश, पनी, किससे, बीटल से. ये है इस पोएम का आयरनी कि ईगल जो है वो ग्रेट है, ईगल जो है वो माइटी है, और जो बीटल है वो क्लॉडिश है, वो पनी है, वो सर्वाइल है, अगली है. तो इतना बड़ा, ऊपर से ईगल कौन है, ईगल ग्रेट गॉड ज्यूस का बर्ड है. तो इतना बड़ा एक बर्ड होके, एक ग्रेट बर्ड होके, एक माइटी बर्ड होके, एक छोटा सा बीटल से वो डर रही है. दिस इज द आयरनी. This is the irony. Clear? The far drone of the beetle's flight shattered her calm by day and nights. कि दूर से अगर उस ईगल को सुनाई दे रहा है कि एक बीटल है, तो उस बीटल का आवाज़ सुन के वो सो नहीं पा रही है, उसे शांति नहीं मिल रही है. ठीक है. For weeks on and she scarcely slept. हफ्ता बीत गया, वो सो नहीं पाई. शी लेड हर एग्स इन ग्रीफ एंड वेव्ड. और उसी हालत में उन्होंने फिर से एक क्लच ऑफ एग ले किया, और क्लच ऑफ एग ले करके वो रोने लगी. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने तो अब और एक क्लच ऑफ एग मैंने ले किया है, अब इनका हालत क्या होगा, इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उन्हें पता है. दैट्स वाई आफ्टर लेइंग अ क्लच ऑफ एग द ईगल स्टार्टेड वीपिंग आउट ऑफ ग्रीफ. ओके, that's why after laying a clutch of egg the eagle started weeping out of grief. Okay, when what she had feared had come to pass and her smashed brood lay on the grass. और ये सोचते सोचते फिर से एक दिन क्या हुआ, अपना नेस्ट पे जब वो आई, उन्होंने देखा कि उनका जो ब्रूड है, यानी उनका जो एग्स है, जो बच्चा है, वो कहाँ गिरा हुआ है, वो ग्रास के ऊपर गिरा हुआ है, एकदम स्मैश हो गया है. यानी कि वंस अगेन व्हेन द ईगल वाज नॉट इन हर नेस्ट एट दैट टाइम द बीटल केम
and with firm determination the beetle destroyed the eggs of the eagle. Clear? So this stanza once again helplessness. ओके क्योंकि यहाँ पे ईगल जो है, यहाँ पे ईगल जो है एकदम हेल्पलेस हो गई है, वो कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बच्चों का रक्षा करूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा है. सो शी हैज़ बिकम वेरी हेल्पलेस. क्लियर? सो आज हम लोग बस इतना तक ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे. सो आप लोग ज़रूर हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू एंड जय हिंद.